एआई के दौर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल हो गया है वो पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका बेटा किस रास्ते पे चला गया। तो ऑफिसर से कहता हूँ कि जी आपके पास जो भी बंदा आए, आप अपने आप को उसकी जगह रख लें। आप सोचें कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको किस तरह रिस्पॉन्स दे, किस तरह आपका मसला हल करे। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable teachers, principals, dear students, our friend from media, Hussain Bhai, other friends, Assalamu alaikum. But I must compliment the forum, the patriotic Hyderabad Patriots, for coming up with this theme of Jago Jagao and organizing this trilingual declamation contest in English, Urdu and Sindhi. Topics are very interesting, no doubt, like respect is to be commanded, not demanded, right? Similarly, to improve is to change, or the challenges of artificial intelligence or cyber crimes for the future generation. So these are very meaningful topics, and we must sensitize our students about these. These ceremonies have a purpose. Right? And when we go out of this hall, we have takeaway messages. We learn from the personalities like Madam Tayyaba Zarif, others who have been attending this seminar and giving lectures to you or listening to you, sharing their opinions with you. Arranging declamation contest in different languages is one of the components of personality development of a student. When a student attends a school, it's our collective responsibility to build his personality, to build her personality, to build his or her character, to impart quality education, to make him or her an effective member of our society. ठीक है ना? जो स्कूल्स हैं सिर्फ पढ़ाई नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, एकेडमिक साइड साउंड करनी है, शख्सियत को निखारना है। अदरवाइज अगर सिर्फ पढ़ना ही है तो फिर तो इनफॉर्मल एजुकेशन, घर में बैठ के पढ़ लें, इम्तिहान दे दें, ठीक है ना? स्पोर्ट्स में आगे जाना है उनको, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। एंड द पर्पस ऑफ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस इज टू क्रिएट रिलेशनशिप्स, relationship of a student with teacher, relationship amongst students, relationship amongst teachers and management. So this whole process has a purpose. So one of the tiny component of this whole is organizing declamation contests to give confidence to our talented students who have special skill in public speaking. Right? So I'm sure those students who have attended here, they have this natural skill or talent of coming here, speaking to the audience, impressing them with their talent. This also is a way of promoting the talent or confidence. ठीक है ना? जो हमारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ जो स्कूल्स में
ये पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, मैनेजमेंट हो, उन सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि असां उन्हनि ॿारनि खे अॻियां वधायूं, उन्हनि जो जेको टैलेंट आहे विच इज़ लेटेंट, वी हैव टू एक्सप्लोर दैट, and we can explore by giving them the opportunities. Another point I would like to emphasize, जैसे मैडम ने कहा कि वालिदैन की दुआएं, टीचर्स का रोल, all these are aimed at making our students effective members of our society. ठीक है, जैसे मैडम ने भी कहा कि लेकिन सिर्फ पढ़ाई देना, पढ़ाई करना या एजुकेशन देना, किसी को डिग्री हासिल करके जॉब लेना, that is one angle. But what our parents expect from us, what our teachers expect from us, is to go out of box, is to go that extra mile. जो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का, हमारी मैनेजमेंट का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपको हम एजुकेट करके आपको डिग्री दिलाएं ताकि आप जो है वो जॉब हासिल करें. Our purpose is to inculcate in you the quality of serving others. देखिए, मैं सपोज करें, आई एम कमिश्नर हैदराबाद, मैंने एजुकेशन ली, CSS इम्तिहान पास किया, पोजीशन मिल गई, सब फैसिलिटीज हैं, मुझे तो सब फायदे हैं ना, बट मेरी प्रेजेंस से दूसरों को क्या फायदा हो, दैट काउंट्स. सो ईच वन ऑफ अस सिटिंग हियर हैव टू अडॉप्ट दिस अप्रोच कि नॉट ओनली वी हैव टू बिकम इफेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, बट वी हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट, वी हैव टू पे बैक. हमारे वालिदैन ने मेहनत की, टीचर्स ने मेहनत की, दोस्तों के साथ मेहनत हुई. मेरे दोस्त की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, बट उस गांव से जो उठ के गया है और सब ने उसको सपोर्ट की है, इट्स हिज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक टू दैट एरिया, टू पे बैक टू द टीचर्स, to pay back to the parents, to pay back to the friends. तो ऑफिसर से कहता हूं कि जी आपके पास जो भी बंदा आए, आप अपने आप को उसकी जगह रख लें. आप सोचें कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको किस तरह रिस्पॉन्स दे, किस तरह आपका मसला हल करे. You will get the answer. So if we are able to build the personalities of our students, build the character of our students, inculcating in them the qualities, the ethics, the professionalism, तो फिर हमारे डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट का, स्कूल्स का, इंस्टीट्यूशंस का मकसद अचीव होगा. अदरवाइज इट विल जस्ट बी एन एक्टिविटी एज अ रूटीन, राइट. जस्ट फ्यू रिफ्लेक्शंस. फर्स्ट टॉपिक, देखिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि जी मैं हैदराबाद का कमिश्नर हूं तो सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करें. भाई क्यों करें, मैं कौन सा कोई अच्छा काम कर रहा हूं, क्यों करना. आई हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट, एंड दैट कम्स थ्रू इंटेग्रिटी, सिंपैथी, एम्पैथी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, कमिटमेंट. सो यू, वॉट एवर यू एम टू अचीव, you have to earn the respect. You cannot demand it. Coming to the second topic, improvement for change. देखिए, हम जिस भी कैपेसिटी में हो, we must
reflect. We must have a reflection of whatever we are doing. That is self accountability. कि मुझ में क्या ज़रूरत है कि मैं improve करूं, and change is always good, obviously. So it starts with self reflection, and change is always good, always positive. You cannot maintain status quo or whatever. You have to go for change. You have to adopt to the change. और थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल के AI के दौर में साइबर क्राइम, द न्यू जनरेशंस न्यू चैलेंज. देखें, आज के AI के दौर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल हो गया है वो पेरेंट्स का. वी हैव टू बी वॉचफुल कि हमारा बच्चा या बच्ची, हाउ ही इज यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. इस तरह के भी इंस्टेंसेस हुए हैं, मैं आपको बताऊं, कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका बेटा किस रास्ते पे चला गया, बिकॉज ही इज यूजिंग दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. वो किस सोबत में चला गया है, कहाँ चला गया है. सो responsibility of parents has increased multifold. We have to keep vigilant eye on our kids, so that we must ensure that we are using this technology in a positive way, in a positive manner. Just last few words for the respectable teachers sitting here. देखिए, प्राइमरी से लेके आज तक जितने टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, हर एक का नाम, हर एक की शख्सियत, हर एक का पढ़ाने का स्टाइल, आई रिमेंबर ईच वन ऑफ देम. जैसे मैडम ने बताया कि उनको नर्सरी पढ़ाने के लिए, तो When I started formal education, जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया, जिस तरह पढ़ाया, I remember each and everything. मूंखे ख़बर आहे त कहिड़ो उस्ताद कीअं ॻाल्हाईंदो हुयो, कीअं पढ़ाईंदो हुयो. हुन छोकिरे खे ईअं छो चवंदो त छोकिरा हेॾे अच, छोरा हेॾे अच, तूं ईअं छो थो करें. So I could say कि वो टीचर उन कि ईअं छो थो चए त पुट हेॾां अचो तव्हां, पुट हीअं न कयो. यू नो डिफरेंस, हीअं न कर, हीअं न कयो. इट हैज़ इंस्ट्रूमेंटल इम्पैक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ दैट चाइल्ड. मुझे पता है कि टीचर वो टांग के टांग ऊपर बैठ जाते थे क्लास में, तो आई कुड फील कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे. सिगरेट, बीड़ी, गोठन में बीड़ी पींदा उस्ताद. लेकिन टीचर रोल मॉडल है फॉर स्टूडेंट्स. जिस तरह वो क्लास में आके पढ़ाते हैं, जिस तरह डील करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, बात करते हैं, उनकी पूरी शख्सियत पे, पूरी लाइफ उनका इंप्रेशन रहता है. सो टीचर्स आर द रोल मॉडल्स. You have to act in a way that your students learn from you. They make you your role models. कि आप किस तरह बात करते थे, किस तरह पढ़ाते थे. यही मेंटोरशिप कहलाती है. मुझे बताया, मुझे अब्दुल अजीज साहब जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, he was my mentor because he used to guide me, he used to tell me, he used to do my career counseling कि आगे किस तरह करना है. तो एक टीचर का रोल सिर्फ टीचिंग नहीं है, बट मेंटोरशिप भी है, काउंसलिंग भी है, गाइड भी है, कि आप अपने बच्चों को इस तरह आगे लेके जाएं कि वो किसी स्टेज पे पहुंच के दे शुड फील प्राउड ऑफ यू that so and so teacher took my responsibility and today I am standing because of them.
Again, a very, very crucial role of the teachers which they have to play in the overall personality building, character development, quality education of our students. Thank you very much. I think I have taken a lot of time, but I really always like to interact with the students, with the parents, with the teachers, because मैं समझता हूं कि जी हमारी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ बैठें, उनके इश्यूज डिस्कस करें, उनकी हेल्प करें, ताकि वो आगे कोई अपना मकाम हासिल कर सके. Thank you very much for patiently listening to me. I'm grateful. Thank you very much, sir. And again, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अवार्ड्स देने के लिए भी ना सिर्फ हैदराबाद पैट्रियट हमारे जजेस को बल्कि स्टूडेंट्स को भी आप तशरीफ़ लाइए. थैंक यू वेरी मच.